Good evening, students. Today we are going to discuss close packing in crystals. Close packing in crystals. क्रिस्टल और सॉलिड में क्लोज पैकिंग मतलब क्या हो गया कि आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो क्या कि एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. That close packing, for in which manner they are associated, get adhered to each other, these all are discussed in this topic. Close packing in crystals. First of all, close packing in crystals, then you will consider atoms, molecules or ions are aspherical in nature. They are closely associated to each other. In this fashion, you will consider these all are spherical particles and these all are closely associated with each other, and this type of growth is in one dimension, so it is called one dimensional growth, one dimensional development or growth of crystal. So close packing, it is told as close packing in one dimension, close packing in one dimension, 1D I am writing. Second option is close packing in two dimension, close packing in two dimension. Two dimensional growth, there are two options. In two dimension there are two options. Consider one way. This is the one layering, one and another atoms are linearly arranged with each other. That means it is horizontal growth. Now in two dimension, vertically another atom would be aligned on this row. So एक उपाय ये है कि इसके ऊपर आप दूसरा एटम को जस्ट इसके ऊपर रखते चलें, जस्ट इसके ऊपर रखते चलें, जस्ट ऑन द वर्टिसेस और ऑन द टॉप ऑफ अनदर एटम, जस्ट इसके ऊपर, just like this fashion we are adjusting another atom, 1 2 3. Then you will consider, take the example of this atom. How many atoms are get attached with this central atom? Then you will find one atom this, another atom this, another atom this, another atom this. Four atoms are closely associated with each other. So this type of packing is called as a square close packing. It is called as a square close packing. Now another option would be what? Another option would be what? Suppose that this is the horizontal alignment of the atoms in close vicinity with each other. They are closely associated, and if vertical alignment we will do, then in the depression of these two atoms we take the another atom. इन दोनों के बीच का जो डिप्रेशन है, इसके बीच एक दूसरे एटम को रखो. देखो इस तरीके से इनके बीच का जो डिप्रेशन है उसके ऊपर रख रहे हैं एटम को. ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन है उस पर एटम को रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं. इस तरह से रखें. अब देखिए, टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस. इस एक एटम की कल्पना कीजिए. इस एक एटम में देखिए कितने एटम इसके क्लोजली एसोसिएटेड हैं. एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये. तो इसके एसोसिएशन में कितने एटम हो गए? 6 एटम हो गए. तो इसको बोलते हैं, ये 6 एटम जो हो गए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्लोज पैकिंग, इट इज़ कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब इन दोनों में बताइए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी? कौन ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है? जाहिर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज़ मोर परफेक्ट दैन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग. नाउ थर्ड, because solid are three dimensional, crystals are three dimensional, so close packing, consider the another context, close packing in three dimension, close packing in three dimensional way.
थ्री डायमेंशनल वे, टेक द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसके ऊपर जस्ट एक दूसरे एटम को रखते जाइए। तो एक तो ये हो गया कि एक ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें, इसकी इफ़िशियंसी कम है तो इसको पहले ही हम लोग क्या किए, हटा दिए। इसकी इफ़िशियंसी कम है, इसको पहले ही हटा। इसके ऊपर अगर रखेंगे तो पूरा का पूरा वॉइड फुलफिल नहीं होगा, पूरा का इसके ऊपर अगर दूसरा एक लेयर सपोज दैट रखा जाए, इसके ऊपर एक रखा जाए, इसके ऊपर इस तरह से रखा जाए तो पूरा का पूरा वॉइड फुलफिल नहीं होगा, इसको बोलते हैं वॉइड, ये वॉइड फुलफिल नहीं होगा। अब यहाँ क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल वे में एक लेयर ये आपका बन गया, दूसरा लेयर इसके ऊपर अगर रखेंगे तो ये पैटर्न स्क्वायर क्लोज पैकिंग की आएगी, इसकी इफिशियंसी कम, पूरा का पूरा वाइड फुलफिल नहीं हुआ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब थर्ड लेयरिंग आप करेंगे तो थर्ड लेयरिंग में मान लो कि ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल है, इसके ऊपर एक थर्ड लेयरिंग हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका टू डायमेंशनल ग्रोथ है, हम इसका थर्ड लेयरिंग करने जा रहे हैं। थर्ड लेयरिंग करने आने में देखिए आपको यहाँ दो तरह के खाली स्थान बनेंगे, एक को मैं कलर कर देता हूँ, एक को मैं कलर कर देता हूँ, नीचे वाले को, नीचे वाले को मैंने कलर कर दिया, ब्लैक एंड कर दिया, ऊपर वाले को मैं क्या किया, खाली रहने दिया। अब अगर इसके ऊपर ओवरलैप करें तो यहाँ देखो इसके ऊपर अगर दूसरा एटम दूसरे एटम को अगर रख रहे हैं तो देखो यहाँ ये फुलफिल पूरा हो गया, इसके ये वाला नीचे वाला वॉइड जो है वो पूरा फुलफिल हो गया एक दूसरे लेयर के आने से, ये भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। यहाँ देखें कि इस जगह पे जो खाली स्थान था ये बचा का बचा रह गया। यहाँ देखो ये जो वॉइड बनता है नीचे के तरफ, इसको मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम सी मान लेते हैं। तो सी बी जो होता है ये वॉइड चार स्फेयर से घिरा हुआ है, देखो ये तीन से घिरा हुआ है, ये अभी तक ट्रायगोनल वॉइड था टू डायमेंशन में। अब यहाँ अगर एक तीसरा एटम आ गया तो ये जो वॉइड है, ये जो वॉइड है, ये वॉइड किससे, ये वॉइड, इस वॉइड की बात करें आप तो ये वॉइड जो है ये चार से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज़ कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल एम्प्टी स्पेस, टेट्राहेड्रल हॉलोज, हम लोग इसको टेट्राहेड्रल वॉइड ही बोलेंगे। और यहाँ इस वॉइड के जो ऊपर वाला सी लेयर जो किए थे, सी के अराउंड अगर मान लो एटम को हम इस तरह से अलाइन करें तो ये जो वॉइड है ये 6 स्फीयर से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ दो तरह का वॉइड बनता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। अब यहाँ क्या है कि मान लो कि थर्ड लेयर, अब यहाँ थर्ड लेयर का प्लेसमेंट कर रहे हैं तो सपोज दैट व्हेन थर्ड लेयर इज पास्ड, व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड, लिखेंगे आप ओवर द सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर so as to cover the tetrahedral void V, टेट्राहेड्रल वॉइड V को अगर भरेंगे तो ये थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेंड, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेंड। और इसमें क्या देखो कि ये जो है क्लोज थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेंड वेयर द स्फीयर in every third layer are vertical, every third layer is vertically aligned to the first layer. Third layer is simply replication of first layer. Third layer is simply replication of first layer. This type of development is called as AB type development, और ये बनाता है hexagonal close pack structure. Hexagonal close pack structure is obtained. हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में आप अब याद रखेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ये किस तरह का बना, ये एक एटम, देखिए ये दो एटम यहाँ रहे, एक एटम इसके ऊपर,
एक एटम इधर, एक एटम इधर, और एक एटम यहाँ 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1 6। ये एक लेयर का हुआ। दूसरा लेयर आएगा कितना, दूसरा लेयर आएगा कितना, मान लो स्पेस कम है तो हम नीचे इसको और नीचे कर देते हैं। ये थर्ड लेयर, सपोज दैट आप यहाँ देखो, ये 2 एटम, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो यहाँ से ये ए लेयर, बी लेयर, ये इसका जो ट्राइगोनल बॉइड था इसको बी लेयर से हम दूसरे लेयर से भर रहे हैं, तो ये आ जाएगा किस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये देखो ये ए ये बी। अब जो थर्ड लेयर आया ये दूसरे तरह का नहीं है बल्कि जस्ट इट इज़ द रिप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो ये इस तरह का जो पैटर्न आएगा वो क्या कहलाएगा, ए बी पैटर्न कहलाएगा। अब यहाँ देखिए ए बी पैटर्न में ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे हेक्सागोनल, इसके अराउंड कितने एटम हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम हैं। तो यहाँ देखिए 6 एटम, इसको आप अलाइन इस तरह से कीजिए, 1 2 3 4। मेरी कोशिश ये है कि आप कम से कम इसको समझ जाएं ढंग से, जैसे इसे ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरह से आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ देखिए इसको नीचे लाएं, इसको भी नीचे लाएं, कितना हो जाएगा, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। इसको आप नीचे लाएं, ये इसको इससे कनेक्ट करें, इसको आप नीचे लाएं, एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ, इसको आप नीचे लाएं, ये देखिए एक एटम, इसको आप नीचे लाएं, बगल में लगता है रामायण चल रहा है। यहाँ देखें आप, ये 6 एटम, 1 2 3 4 5 6 एटम, यहाँ 1 2 3 4 5 6 एटम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक इसके फेस पर एटम रहा, इसके एक फेस पर एटम रहा, इन सब को अलाइन कीजिए। ये हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में मदद करेगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में मदद करेगा। और 3 एटम ये बॉडी सेंटर पे रहे, 3 एटम इसके बॉडी सेंटर पे रहे, 3 एटम कहीं फेस पर नहीं है, बॉडी सेंटर पे। अब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 एटम नीचे 6 एटम ऊपर, कितना हो जाएगा 12। आपसे पूछ सकता है कि फॉर द HCP ज्योमेट्री नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कितना होगा। तो आप देखो यहाँ से कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने कॉर्नर हो गए, 6 और 6, तो 6 6 12 कॉर्नर एटम हो गए। और इनसे कितना, एक कॉर्नर से कितने क्यूब बन सकते हैं, 6, तो 12 × 1/6, और प्लस कितना हो गया, फेस सेंटर पे कितना एटम है, 2 ठो, फेस सेंटर पे आप देख रहे हो 2 एटम है, तो 2 × 1/2। और बॉडी सेंटर में कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया 2, और 2 + 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3, कितना 6 एटम्स पर यूनिट सेल। आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फॉर HCP ज्योमेट्री पैकिंग इफ़िशियंसी बताओ। तो पैकिंग इफ़िशियंसी इसमें भी कितना होता है, 74% मैक्सिमम इफ़िशियंसी होती है। अब थर्ड जो, अब यहाँ हम लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का एक किए थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड। अब नेक्स्ट हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर बात करें, यानी व्हेन द थर्ड लेयर, आप लिखोगे कि व्हेन द थर्ड लेयर इज
placed over the second layer. When the third layer is placed over the second layer, that the spheres cover the octahedral void, जैसे देखो ये कितना हो गया 1 डायमेंशन में, यहाँ 2 डायमेंशन में क्या किए कि टेट्राहेड्रल वॉइड को ये ट्रायंगुलर वॉइड को कवर किया था, एक दूसरा एटम टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया था। अब मान लो इस तरीके से जो वॉइड बना, ये वॉइड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखिए एक ये दूसरा एटम, ये तीसरा जो लेयर आया वो फर्स्ट का रेप्लिकेशन था, ये बना टेट्राहेड्रल वॉइड बना था। ठीक है, अब यहाँ देखो एक एटम ये, दूसरा एटम ये, तीसरा एटम ये, इसके ऊपर अगर हम लेयरिंग करेंगे, एक ऑप्शन ये दे रहे हैं। अब इसको हम बना रहे हैं इस तरीके से, दूसरा पेन ले लें, दूसरे पेन से अगर इसको लिया जाए इस तरीके से कि इसको कवर अप करें, आप इस तरह से कवर अप कर रहे हैं, इस तरह से कवर अप कर रहे हैं, इस तरह से कवर अप कर रहे हैं। देखो ये कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया। ये कैसा बनाया, देखो इसके ऊपर एक एटम ये, दूसरा एटम ये, तीसरा एटम ये। देखो इस वॉइड के राउंड कितने एटम हैं, 6 एटम हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं SF6 का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ क्या है, 6 एटम हैं इस वॉइड के राउंड, तो ये ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर फिलिंग किया जाए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर फिलिंग करेंगे तो ए लेयर और बी लेयर, इसके बाद जो थर्ड लेयर आएगा, थर्ड लेयर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो देखो एक एटम क्या हो गया हमारा, ये है, इसके ऊपर हम क्या किए, यहाँ एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, ये चौथा एटम है, ये 5वां एटम है, और ये देखो 6ठा एटम। अब इसका रिवर्स कर दें, ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा, 5वां और एक 6ठा एटम। तो ये देखो ए लेयर, ये बी लेयर, और ये क्या होगा, सी लेयर। फिर जो फोर्थ लेयर आएगा वो क्या होगा, ए का रिपीटेशन होगा। तो यहाँ देखो ये जो पैटर्न आया, ए बी सी लाइक पैटर्न फॉलो अप हुआ। इस तरह के क्लोज पैकिंग को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इट इज़ कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ए बी लेयरिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको समझने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं, ए बी सी, ए, तो मान लो कि ये हमारा ये ए एटम हो गया, ये एटम, और इसके बाद कितना हो गया, ए एटम के बाद इसको आप इस तरह से देखें कि ए, यहाँ आप दूसरा, 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ देखो एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। आप क्या करो, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको पी से, इसको इससे मिला दें। एक एक एटम यहाँ रहेगा प्रेजेंट, 1 2। अब देखिए ज़रा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, लगभग इस तरह का फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक फेस पर एक एक एटम है, हर एक फेस पर एक एक एटम है। तो आप देखो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है, 4 CCP ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, CCP ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितना होगा, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। से क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्यूबिक क्लोज पैकिंग ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताएं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा,
कोने पर 8 एटम, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस पर 6 इंटू 1/2, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। और पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, पैकिंग इफ़िशियंसी हो जाएगी इसमें भी कितना 74%। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक बनता है वॉइड्स। तो वॉइड्स की बात हम लोग कर लें। वॉइड्स कितने तरह के वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स 2 तरह के होते हैं। वॉइड्स होते हैं 2 तरह के, एक कहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरा कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से कंस्टिट्यूटेड रहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से और 4 स्फीयर से कंस्टिट्यूटेड रहते हैं। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये कहाँ कहाँ होता है, तो एट द बॉडी सेंटर होता है। आप लिखोगे एट द बॉडी सेंटर कितना, एक ठो, एंड ऑल एज सेंटर, ऑल एज सेंटर। तो ऑल एज सेंटर में देखोगे कि कितना एज हो गया, 12 एज हो गया, और एक एज जो होता है 4 से रिलेटेड रहता है तो कितना हो गया 3 हो गए। तो एज सेंटर पे कितने हो गए 3 और बॉडी सेंटर पे हो गए 1। तो इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो पोजीशन रहा कितना रहा, एट द ऑल एज सेंटर एंड एट द बॉडी सेंटर। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, नियर टू द कॉर्नर होता है, नियर टू द कॉर्नर। नियर टू द कॉर्नर यू कैन सी how many body diagonals are present in a room. If you are sitting in the room you can imagine how many body diagonal, 4 body diagonal, और हर एक body diagonal पर from the corner near to the corner कितने corner, 8 corner, 1/4 distance from the corner। तो कितना हो गया 4 into 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए 4, तो ये क्लोज पैकिंग के बराबर होता है 4। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज़ द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वॉइड से कि टाइप ऑफ वॉइड अलॉन्ग एन एजेस कितने हैं, एक एजेस में कौन से वॉइड प्रेजेंट रहते हैं। तो एज पर आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉइड, मान लो टाइप्स ऑफ वॉइड, मैं समरी कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ वॉइड ऑन एज कितना हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। एज पर सिर्फ क्या हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। टाइप्स ऑफ वॉइड ऑन फेसेस, टाइप्स ऑफ वॉइड्स ऑन फेसेस, फेस पर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, नो। फेस पर क्या होगा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हर एक फेस पर देखो, ये अगर एक क्यूब है तो इसके हर एक फेस पर क्या होगा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन फेसेस। और अगर मान लो थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप ऑफ वॉइड ऑन फेस डायगोनल, टाइप ऑफ वॉइड ऑन फेस डायगोनल, टाइप्स ऑफ वॉइड्स ऑन फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल पे देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फेस डायगोनल पे कोई वॉइड होता है, तो फेस डायगोनल पे कोई भी वॉइड नहीं होता है, नो वॉइड्स ऑन फेस डायगोनल। चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड्स होते हैं, बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड्स होते हैं। तो बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ऑन ईच बॉडी डायगोनल, और 4 बॉडी डायगोनल है तो 4 दूना 8, और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन सेंटर ऑफ दिस द बॉडी सेंटर ऑफ द सॉलिड। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड का हम लोग पोजीशन भी देख लिए। अब आगे आइए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है कि भाई एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है, बनता है और पूछा जाता है atoms of element B form HCP lattice and those of atoms A occupy 2/3 of octahedral void. What is the formula of compound formed by the element A and B? Atoms of element B HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral void. तो ये HCP स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, octahedral void बनाएगा। तो number of tetrahedral void formed is equal to twice the number of atoms B and only 2/3 of these are occupied by the atoms of element B. Hence the ratio of number of atoms A and B is 2 into
2/3:1। देखो ये हो गया कितना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए बी के बराबर, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 2 इंटू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ क्या किए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी इज 2 इंटू 2/3। ए कहाँ पर प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था, ए ऑक्युपाई द 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दुगना हो जाएगा। तो यहाँ देखो कितना कर दिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ए एंड बी इज 2 इंटू 2/3:1, 4/3। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी A4B3। इस तरह से आप यहाँ देखें कि यहाँ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड ये देखिए एनसीईआरटी में भी बताया है कि ये जो बता रहा है ये सॉलिड स्टेट, ये 8 tetrahedral voids per unit cell CCP structure and 1 tetrahedral void showing the geometry. 1 tetrahedral void showing the geometry. Location of octahedral void per unit cell of CCP or FCC lattice at the body center of the cube at the center of each edge. Only one such void is shown. तो सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा इमेजनरी कॉन्सेप्ट है और मेरा ये प्रयास रहा है कि आपको ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। अभी अगर कोई डाउट हो देन यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। थैंकिंग यू ऑल।